like a lot of I just want to state that a lot of people will be writing mastering UPSC CSET, right? So one thing I'm very honest here, you don't have to master UPSC CSET, right? This is a myth. You do not have to master. You have to get 67 out of 200, and to get 67 out of 200, you don't have to master CSET, right? You have to just clear CSET. So I hope सबको पता है कि you need to score 67 out of 200. That is not 67, 66.66 out of 200 to be accurate. This is the score that you need to get at least, right? So I have given some trend analysis for past the time since CSAT has started. Now this part and this part, they are not asking any question. This part they like left very early, and this also, you know, data interpretation also for past few years also, and in between also they haven't asked any question. But it does not mean that they won't ask any question this year as well. However, at least for past 6 years they have asked only one question from data interpretation. But you don't have to practice too much for data interpretation, but you try not to leave it totally, because data interpretation questions are easy, right? So if they're asking one or two questions from that, then that can give you a good 2.5 or 5 marks, right? So don't leave it totally, but you don't have to, you know, go for extensive preparation for data interpretation. Just solve a few questions for that from this and you will be fine. Okay, so if you look at it, to almost it is has been constant for past so many years, that they are asking around somewhere around 28 questions from English comprehension, right? And somewhere around 15 to 20 questions from analytical reasoning, and then remaining around 32 to 35 to 40 questions from mathematics, quant, right? And this is one of the major issue with the students, that they are having issues in the quant part, right? So logical reasoning part, so the logical reasoning part is one of the easiest part. One of the easiest part, I'm not saying that it is very easy, but one of the easiest out of the three: basic maths and numeracy, reading comprehension, logical and analytical reasoning part. So this is one of the easiest part. On an average, we are saying that there are 15 questions from this part, and this is one thing that you can target, right? So to clear this exam, if you are having issues, so this is one soft target that you need to have in mind, and this is where you need to do good, right? Good means really good. So if you are having issue in logical reasoning, then practice this part more, because here elaborate calculations are not needed. This is the part which can be solved with practice only. You don't need to know many formulas, you don't need to know many methods, you just need to have a good hang of the type of the question and just practice, and you will be quite comfortable. So out of 15, 10 question at least you need to target from this logical reasoning part, right? And now some things, you know, there are some myths around surrounding the paper also, and there are some actually reality also, I can say. But this reality vary. How? Like for 2023 and 2024, if we compare, so in 2023 the mathematics part, the quantitative aptitude part, was very difficult. Like very difficult, I am saying, that means it was on the difficult side. And in 2024 this quantitative part was comparatively easier, right? But in 2023 the English comprehension part was a little easier, and in 2024 English comprehension part was little difficult. So this is UPSC, right? It is unpredictable. So some of the students, right, what they did was they analyzed 2023 paper and they thought that reading comprehension would be easier, even though they knew that their reading comprehension was not very good, right? Still they practiced reading comprehension part, okay, and then they attempted reading comprehension in 2024
although their maths was above average, right? Still, because of 2023 paper, they had it in mind that maths would be difficult. Sorry. So they attempted more of English comprehension part in 2024 and less of reading this quantitative part. And they, although they were clearing the prelims GS part, but they couldn't clear the CSAT part. Don't make these kind of mistakes, right? These mistakes will be they cost you very dearly, right? So the thing is that you need to understand what kind of questions you are good in and you need to work on that part, right? So in quant they're mostly basic numeracy and then data interpretation. Data interpretation part they are not asking, but we will do a little bit of it. In this part, quantitative aptitude, the basic numeracy part, this is where they are asking now, like these are the mostly the topics, and this is where they are asking 35 to 40 questions, right? And if you look at it, 1 3 3 6 8 10 12 13 14 15 16, almost 16 17 topics are there here, and out of these, so they are asking 35 to 40 questions. So you need to understand that which is the priority area. Out of this, the number series, the HCF LCM, if we combine both of these, so there are around 8 to 10 questions from this part itself, the number series part, right? The divisibility, right? The remainder and other things, HCF LCM, the series and everything. So the digits, right? So this is one part where you need to work a little harder, because this is not very easy. The questions from this part are mostly on the difficult side, right? But you need to work on it, because this will give you a 8 to 10 question, a lot of marks. You may devote a little more time to this part. Second is the chapters which are comparatively easier. The easier the questions are also on a little easier side. Ratio proportion, mixture alligation, time, speed and distance, time and work, average, percentage, clocks and calendars, right? Profit loss. These 8 topics in general are on the easier side, right? Although because there are multiple types of questions, though I won't say they're very easy, and also the questions asked are not very direct these days, but these are the questions where you will get value for your time. If you are investing like enough time on these 8 topics, so again there would be from these 8 topics there will be around 10 to 12 questions. So if we combine these 10 topics, so there are around 20 questions, and even might be little more than 20. Okay? So this is one target that you need to follow if you are like okay with mathematics. If you are good, then you can go with probability, permutation, combinations as well. But in general, I would suggest that you target these chapters more. Right? Any questions till now? Anyone having anything to ask? Right? So these are the 8-10 chapters. Yes, yes. Prabhjot? Good afternoon. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फॉर मी देखिए पर्सनल ओपिनियन है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स रिसेंटली हैव asked and few of my students have told कि नहीं सर permutation combination probability we are comfortable, ठीक है? तो हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं, permutation combination probability में से आते हैं, नो डाउट। हम्म हम्म हम्म
यस इट कैन बी, देखिए इट इज श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन तो आता है प्रोबेबिलिटी में से, बट फॉर मी देखो पर्सनल है अगेन ना, मुझे लगता है कि चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, उनका क्वेश्चन भी बहुत इजी नहीं आता, दैट इज वाई मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स में इश्यू है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि, और जैसे सिलेक्टिव मैथमेटिक्स करना है राइट, आई एम नॉट पुशिंग कि आप पूरा पूरा मैथ्स करके जाइए, कि पूरा पूरा मैथ्स करना, जीएस भी पढ़ना होता है, इसमें सिर्फ 67 स्कोर करना है राइट, although some of you might think कि 67 सिर्फ नहीं होता, it gets a little difficult and I understand that. Past 2 years के पेपर, खासकर 2023 का पेपर, it proved it कि हाँ scoring 67 might not be that easy, but it is not that difficult as well. ठीक है, तो उस केस में अगर आप सिलेक्टिव करके जा रहे हैं, एंड अगेन एज आई सेड इन द स्टार्ट ओनली, कि अगर आप सी सेट को मतलब डिफिकल्टी लेवल आपको ज़्यादा लग रहा है तो यू विल हैव टू डू सिलेक्टिव, बट कौन से टॉपिक सिलेक्ट करने हैं इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, ठीक है, तो वो हम इंडिविजुअली वी कैन टॉक ना, जिन जिन को इश्यूज है स्पेसिफिक टॉपिक्स में, एंड दैट ऑल्सो आई हेल्प विद द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, इसीलिए आई विल आस्क यू टू अटेम्प्ट वन टेस्ट पेपर, मैं सबको एक टेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है, सी सेट का, एंड आई विल आस्क यू टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट। पहले मैंने इसलिए नहीं दिया कि ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा मुझे उस टेस्ट को पहले करवाने का, नाउ यू विल नो कि किस माइंडसेट से उसको अटेम्प्ट करना है, एंड इफ यू नो विद व्हाट माइंडसेट यू विल बी अटेम्प्टिंग इट, तो इट विल बी अ लिटिल ईजियर एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स ना, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो और किस टाइप की गलतियाँ कर रहे हो, देन इट विल बी ईजी कि आप कहाँ किन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे प्रैक्टिस बेटर कर सकते हैं, ठीक है। सी सेट के साथ एक इश्यू ये भी है कि जो भी हमारे पास टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं राइट, तो या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर वो कंपैरेटिवली यूपीएससी के लेवल के हिसाब से बहुत इजी है। विजन के ले लीजिए, विजन के लास्ट ईयर अगर आपने अभ्यास दिए होंगे तो अभ्यास 1 वाज फाइन, सी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, अभ्यास 2 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था राइट, और अभ्यास 3 वाज ऑन द वेरी इजियर साइड। इसी तरह अनअकैडमी के भी लास्ट ईयर टेस्ट थे, तो अनअकैडमी का एक टेस्ट था सी सेट का जिसमें नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हु अपीयर्ड पास्ड राइट, उसमें हाईएस्ट स्कोर ही 49 था आउट ऑफ 200। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सी सेट के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं मिले स्टैंडर्ड इट्स फाइन, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट अगर टेस्ट है तो आपको पता चल जाएगा इतना डिफिकल्ट टेस्ट यूपीएससी नहीं देने वाला। 2023 का जो यूपीएससी का था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, और उससे भी 3 4 5 स्टेप आगे डिफिकल्टी लेवल बना देते हैं सम इंस्टीट्यूट्स जस्ट, है ना। एंड सी सेट में एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट्स, देखिए पर से आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टीट्यूट और कोचिंग और एनीथिंग, बट एक प्रॉब्लम जो सी सेट के साथ है दैट इज द फियर साइकोसिस, ठीक है, दे विल पुश यू टू द फियर, ठीक है, उनको उनको थोड़ा डराना है राइट, वाई द होल कोचिंग मॉडल इट वर्क्स ऑन द फियर पार्ट ओनली, है ना, कि आप डरोगे तो आप पढ़ोगे, पढ़ने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करोगे, एंड इट इज डेफिनेटली मनी फॉर देम राइट, सो दिस इज द ट्रूथ, ठीक है, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ बिजनेस, ठीक है, एंड आई वुड से या डेफिनेटली आई एम आल्सो इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस ओनली, ठीक है, बट फियर साइकोसिस इज अ लिटिल डिफरेंट। तो जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक यू आर नॉट गोइंग टू यू नो पे द इंस्टीट्यूट इन जनरल। तो सी सेट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी क्लासेस की ज़रूरत होती है, बट स्टिल सी सेट के बैचेस चलते हैं और लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इन वन बैच, ठीक है, जिनको आता भी है सी सेट उनको भी एक डर रहता है, तो वो भी सी सेट में थोड़ा सा उसके लिए कर लेते हैं। आई नो यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इनमें से सम ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन सी सेट, कंफर्टेबल इन दैट सेंस कि आई वोंट से बहुत कंफर्टेबल है, बट हाँ आप लोगों को पता है कि आपका सी सेट हो जाएगा, बट स्टिल यू आर हेयर, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर है माइंड में। सो दिस इज वन थिंग जो फियर साइकोसिस की वजह से बच्चे, एंड वो जितना आप डरोगे उतना ही इट इज बैड, ठीक है ना, जितना आपको डर लगेगा उतना ही, क्योंकि यू विल ईदर प्रैक्टिस टू मच सी सेट, ठीक है, और यू विल मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा सी सेट प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप जीएस पे टाइम नहीं दे पाओगे, या फिर आपको लगेगा कि छोड़ो सी सेट नहीं हो रहा, जितना होता कर दो, तो यू वॉन्ट इवन प्रैक्टिस प्रॉपरली, देर विल बी ए फियर,
कुछ फियर ऐसे होते हैं जिनको हम दूर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ फियर ऐसे होते हैं जिनको लगता है अब है डर, कोई बात नहीं, बोथ इज बैड, ठीक है। अगर फियर है तो ओवरकम इट अ लिटिल एंड मेक अ वाइज स्ट्रेटजी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नो नीड टू से आई एम हियर to help you in making strategy, individual strategy we can make for CSET as well, ठीक है। तो हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली मुझे 2-3 और स्टूडेंट्स ने बोला कि सर नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट आई हैव गुड होल्ड अपॉन, तो मैं ये वाला पार्ट भी करूँगा या करूँगी, एंड इट्स ओके, राइट, इट विल डिपेंड अपॉन यू। सिमिलरली जैसे ज्योमेट्री पार्ट है, ज्योमेट्री पार्ट मुझे ईजी लगता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पार्ट डिफिकल्ट लगता है, तो ज़्यादा उस पर मत फोकस कीजिए, राइट। बट एट द एंड डिसीजन जो है कितना करना है क्या करना है, वो टेस्ट वगैरह सॉल्व करके ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस किस चीज पे फोकस ज्यादा करना है, राइट। एनी क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग? ओके, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट है, सॉरी समवन रेज, यस यस शालिनी, यू मे आस्क। आपकी वॉइस वैसे कट रही है, आई जो मेरे को आपका समझ में आया, यू आर सेइंग कि थोड़ा क्वांट कर लो, थोड़ा रीजनिंग कर लो, और इंग्लिश के कुछ पैसेज इजी होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं, इट इज या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में कुछ इश्यूज आते हैं, आई डिस्कस दोज इश्यूज आल्सो जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पेपर फेस करते हैं, ठीक है। एक तो टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर इशू, दैट आल्सो आई टॉक, ठीक है, आई टेल यू अबाउट इट। यस यस इशू, देखिए ये जीएस में भी होता है, राइट, सबके साथ आई गेस, राइट। ये इशू क्यों आ रहा है, देखिए बेसिकली जैसे पी एंड क्यू पी क्यू आर वाला जो क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं, उसमें ये इशू इसलिए आ रहा है कि पी क्यू आर अपने पढ़ा नहीं होता, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होते, तो हम क्या करते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाते। और यूपीएससी का ये वाला पोर्शन होता है बहुत इजी होता है, बट यू जस्ट नीड टू हैव दैट बेसिक आइडिया, और मोस्टली बच्चों को बेसिक आइडिया होता है ऐसे क्वेश्चन में। पिछले 5 साल के आप अगर ये जो क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है, पी बाई क्यू पी इसको, या फिर इन इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस वाले, इन इक्वेशंस वाले, राइट, तो आप अगर उठा के देखोगे तो दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आप उनका सॉल्यूशन देखोगे, इट इज लाइक लेस देन हाफ अ मिनट ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिनट से ऊपर का सॉल्यूशन नहीं है मोस्टली। लेकिन वही जैसे यीशु ने बोला कि लगता है यार इतना आसान तो नहीं होगा, हमें आते ही नहीं है तो इतना आसान कैसे हो सकता है, राइट, हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमसे सॉल्व कैसे हो सकता है, दैट इज वन थिंग अगेन, क्योंकि फियर होता है, एंड व्हेन यू आर हैविंग फियर तो यू विल हैव सेल्फ डाउट, ठीक है। सेल्फ डाउट इन इवन दोज क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, इट रिसेंटली इट हैपेंड कि वन ऑफ माय स्टूडेंट ना, ही स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 200 ना सी सेट के टेस्ट में, है ना, एंड very fearful even after scoring 60 out of 200, है ना, very fearful। I won't say कि 60 out of 200 पे आपको बहुत डरना चाहिए, right, if you are scoring, क्योंकि 60 out of 200 आप स्कोर कर रहे हो means there is a scope of improvement, right। अगर तो आप स्कोर कर रहे हो लाइक 30-40, है ना, 20-30 के अराउंड, तो फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डर लग सकता है, अ लिटिल, राइट। बट इफ यू आर, तो ये मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इरेशनल, हो सकता है डर लगे, बट दिस इज वन थिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देयर इज अ फियर,
और ये जो अंडरलाइनिंग फियर है इसकी वजह से क्या होता है, सीसेट को बहुत बड़ा बना लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अवॉइड। ठीक है, राइट। और इस ये जो जिनका भी मतलब 60 के आसपास स्कोर आ रहा है, राइट, उनको ऐसा नहीं है कि सी सेट आता नहीं है, राइट। जिनको सी सेट नहीं आता उनका अगर सीधा सीधा टेस्ट देने बैठ जाए बिना प्रैक्टिस के, दे वुड स्कोर 30-40 मार्क्स, मे बी इवन लेस, राइट। तो ये तो अलग चीज है, बट दिस इज नॉट कि उनको सी सेट नहीं आता, उनको सी सेट आता है, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी प्रैक्टिस, एंड दे विल बी इजीली एबल टू क्लियर द सी सेट पार्ट, राइट। तो वही जो आप बोल रहे हो इशू, कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट ये मान के चलो क्वांट के 35 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, नहीं। बट हमें भरोसा ही नहीं होता अपने आप पे कि क्या इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो आपको करना है, राइट। अपने आप पे भरोसा करना है उस केस में कि हाँ नहीं नहीं आता है, राइट। एंड अगर मुझे आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज वन थिंग इज आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, राइट। तो यू कैन नॉट थिंक योर सेल्फ एज समवन हु इज वेरी डम, राइट। ऐसा नहीं कह सकते, सोच सकते कि नहीं यार मुझे कैसे आ सकता है क्वेश्चन। इफ यू आर हैविंग दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको कल को ये भी बोलोगे यार मैं डिस्ट्रिक्ट कैसे चला सकता हूँ, राइट। ऑब्वियसली सबका टारगेट तो है कि आईएएस बनना, मोस्टली मे बी आईएफएस सम ऑफ यू, मे बी आईपीएस सम ऑफ यू, लेकिन इन तीन के बाहर तो किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस तो जनरली नहीं ही होगा। एंड ऑल ऑफ दीज थ्री रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनालिटिकल वर्क एंड अ लॉट ऑफ वर्क। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को यूपीएससी का एक सी सेट का एक मैथ्स का क्वेश्चन है ना, और इतना मेरे को नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, सेल्फ डाउट, देन यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि आप डिस्ट्रिक्ट कैसे चलाओगे कल को, मे बी इन पुलिस फॉर्म या फिर मे बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अगर बाहर जाओगे तो एम्बेसडर बनोगे तो मे बी पूरी पूरी एम्बेसीज चलानी पड़े, राइट। देन हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, राइट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो मूविंग टू दिस पार्ट, हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़े बहुत क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करके चले जाना, और जितने भी आप मोस्टली टेस्ट देखोगे उन सब में एक दो क्वेश्चन दिया होता है इनका, तो टेस्ट कुछ सॉल्व कर लेना, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। ये डाटा इंटरप्रिटेशन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने वैसे ही डाले हैं सैम्पल, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट थोड़े प्रैक्टिस कर लेना। एंड किसी को भी यहाँ पे अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल चाहिए हो, सी सेट का टेस्ट वगैरह चाहिए हो, तो आई अवेलेबल, आई हैव ऑल ऑफ देम, सो यू कैन आस्क, आई विल शेयर, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मत करना। किसी को अगर असेसमेंट करवानी है तो सॉल्व सम सी सेट टेस्ट, सेंड देम टू मी, पीडीएफ भी और उसका वो भी, लाइक OMR और वट एवर, एंड आई ऑल्सो हेल्प यू कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। अनड्यू बहुत टाइम मत वेस्ट करना सी सेट पे डर की वजह से, राइट। ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, एक स्टोरी है काइंड ऑफ, राइट। मतलब ऑल बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंस आई हैव, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है आप लोगों के लिए सर अपनी स्टोरीज ही सुनाते हैं, बट दिस आर, दैट इज द ट्रू स्टोरी, राइट। वन ऑफ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो वन ऑफ लाइक माय को एस्पिरेंट, ठीक है, he was scoring like 5, 7, 8 marks in the CSAT test, right? 2016-17 की बात है ये, right? And he was very frustrated, like 2016 तक तो पेपर भी इतना इजी आता था, 2016-17 तक तो CSAT का, कि like a lot of students scored 100+ marks, and उसका उन पेपर में भी 8-10 मार्क्स आते थे, right? Now like he knew कि मेरा CSAT अच्छा है, he asked, right? And generally क्या होता है कि I don't become that blunt, and you as a person you should not be that blunt, but I asked him कि यार you should look for something else, because CSAT जब तक रहेगा, right, you will not be able to clear this exam, क्योंकि टेकिंग फ्रॉम 8-10 मार्क्स, वो भी उस टाइम के पेपर्स में जो कि काफ़ी इजी होते थे, ठीक, वहां से 66 मार्क्स 67 मार्क्स तक जाना, इट इज नॉट दैट कि नहीं आ जा पाएंगे, ही वुड बी एबल टू रीच डेफिनेटली, मतलब 10 से आप भी लोग जा सकते हो 67 तक, बट जितनी मेहनत उसको करने में करनी पड़ेगी, उस उतनी मेहनत करने के बाद यू मे नॉट हैव इनफ टाइम टू क्रैक द जीएस पार्ट। यहाँ पे सिर्फ इशू ये नहीं है कि आपको सीसेट ही क्रैक करना है, यहाँ पे इशू ये है कि सीसेट के साथ साथ जीएस भी क्रैक करना है, ठीक है।
तो आज के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो अगर कोई भी जो मतलब कि ईजियर टेस्ट सीरीज है या 2022 से पहले के अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर आपका स्कोर बिलो 10 आ रहा है, ठीक है, तो like forgive me for being blunt but it is going to be very difficult for you people to crack the exam, ठीक है. At least you are scoring 20-30 तो at least you know some things, right? You have an area of improvement, कुछ practice से आप कर लोगे. If you are scoring below 10 इसका मतलब तो आपको zero knowledge है CSET का, right? So from that level you can reach the level जितना UPSC को required है, but at the same time फिर CSET is going to be very tricky. Sorry, GS is going to be very difficult, ठीक है, क्योंकि अकेला पेपर नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा. GS की प्रैक्टिस में उतना ही टाइम देना पड़ेगा. एंड अगर आपने एक पूरा साल लगा के CSET और GS कर भी लिया प्रॉपर तो वो प्रीलिम्स पार्ट है. व्हाट अबाउट द मेंस पार्ट, राइट? तो इट इज दैट इज व्हाई, राइट? आई होप यहाँ पे कोई भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से CSET इतना खराब किसी का नहीं होगा कि 10-12 मार्क्स भी नहीं आ रहे होंगे टेस्ट में. सो यू पीपल विल बी फाइन. Then it is mostly moderate to difficult level का पेपर है. Earlier it used to be easy to moderate, ठीक है. Now it is at the best moderate पेपर आएगा. Don't expect कि बहुत easy पेपर आने वाला है CSET का. 2020 के बाद बहुत इजी पेपर तो नहीं आया है, ठीक है. और मैथ्स में बहुत फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ अराउंड देयर आर 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं मैथमेटिक्स में. यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी इलैबोरेट फार्मूला, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. हाँ, अभी जैसे क्या होता है, एक और एग्जांपल बताता हूँ. व्हाट हैपेंस इज लाइक एक इंसान एक काम को एक दिन में कर रहा है, ठीक है. दो इंसान उसी काम को कितने दिन में करेंगे, राइट? हाफ डे, राइट? कॉमन है, बट यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. अब मैं बोलूँ एक इंसान एक काम को एक दिन में कर रहा है, तो दो इंसान दो काम को कितने दिन में करेंगे? एनीवन आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में. यस, दैट इज द आंसर. बट कितने लोग हैं जिनके माइंड में है दो इंसान दो काम को 2 दिन में करेंगे? बी ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, गुड, ठीक है. एक इंसान एक काम को अगर एक दिन में करेगा तो दो इंसान दो काम को एक ही दिन में करेंगे, राइट? बट दिस इज वेयर वी लैक दैट एप्टीट्यूड. एकदम से हम कैरी अवे हो जाते हैं, देन विल राइट दो इंसान दो दिन दो काम, राइट? एंड दो इंसान एक काम को हाफ डे में कंप्लीट करेंगे. नाउ ये देखो एप्टीट्यूड की बात है. आपको पता है अगर एक इंसान एक काम को एक दिन में कर रहा है तो दो इंसान एक काम को 2 दिन में तो नहीं ही करेंगे, राइट? एंड दिस इफ यू यूज दिस कॉमन सेंस तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आधा आए हैं वहाँ पे. जब भी हम बात करते हैं कि हम उसको इनवर्स क्यों लेके जाते हैं whenever we are working doing the time and work. इतना बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए. हाँ, एकदम से कोई पूछेगा तो समटाइम्स यू मेक मिस्टेक, बट यू नीड टू नो द कंसेप्ट, राइट? एंड दिस कंसेप्ट, दिस थिंग, इट कम्स विद प्रैक्टिस. कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रैक्टिस, स्पीड एंड एक्यूरेसी. तीनों ही एस्पेक्ट में स्टूडेंट्स लैक, ठीक है. स्पीड में इशू क्या है? स्पीड के साथ इशू क्या है? यू आर थिंकिंग कि 120 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं. 80 क्वेश्चंस करने ही नहीं है आपको, राइट? दिस इज द मिथ. इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस देन डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा भाई. CSET में एक्यूरेसी बहुत खराब भी किसकी होगी तो भी 50 में से कितने गलत हो जाएंगे? 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन. स्टिल यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट? बट प्रॉब्लम तब आती है जब 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं होते, राइट? सो दिस इज वन थिंग वेयर यू नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन स्पीड. बट स्पीड उतनी भी नहीं चाहिए कि आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं करने. 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके चलो 120 मिनट्स में. एंड नाउ इफ यू डू द मैथ्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. यू गेट 2 to 2.5 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन. एंड उसमें से 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे रीजनिंग के और मैथ्स के जो आपके 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, राइट? सो अगर इफेक्टिवली बात करें तो फॉर 40 क्वेश्चंस अराउंड यू गेट 105 मिनट्स, जिसमें कि आप
इजीली उस चीज को कवर कर सकते हो विदाउट गेटिंग मच बेनिफिट। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका जीएस पार्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। समवन इज आस्किंग समथिंग, यस यस। Yes, 67, 66.66 you need to score out of 200. It won't matter at all. Yes, doesn't matter. So that is why you don't have to like solve too many questions. ठीक है, so this is one thing that you need to look right now. Lॉजिकल रीजनिंग सेकेंड पार्ट है जिसके कि व्हाट आर द टॉपिक्स, ऑल ऑफ देम आर ऑन द इजियर साइड। ठीक है, क्वांट के कंपैरिजन में लॉजिकल रीजनिंग अभी तक जो यूपीएससी दे रही है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, बट अब तक के जो पेपर हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का जो बैंकिंग का एग्जाम होता है दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, कैट वगैरह लेवल का डिफिकल्ट होता है, राइट, बट लॉजिकल रीजनिंग का जो अभी तक का यूपीएससी का पैटर्न रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दे आर ऑन द इजियर साइड। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, राइट। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, यू नीड टू नो द डायरेक्शंस, राइट। बस अगर आपको ये है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, जो कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, वहां पे जल्दबाजी में हो भी जाती है। इफ यू आर फेसिंग ईस्ट, राइट, एंड नाउ समवन आस्क यू टू मूव टू योर राइट, तो आप अपने फेस को इधर करके इस साइड राइट करेंगे। नाउ इफ समवन इज आस्किंग यू टू फेस राइट, ठीक है, तो ये राइट नहीं है, दिस इज द राइट। ठीक है, तो वहां पे जल्दबाजी में ये गलती करते हो तो ध्यान रखना। आई एम टेलिंग यू दिस मिस्टेक, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। इट इज कॉमन टू आस्क देन यू आर फेसिंग साउथ, ठीक है, and you are taking a right turn of 2 kilometers, so this is right, this is not right, this is right। साउथ का इस तरफ फेस कर रहे हो, ये राइट है, इस तरफ फेस करोगे तो ये राइट है। सो दिस इज वन कॉमन मिस्टेक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अवॉइड दिस मिस्टेक। बाकी डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं, अगर 2 क्वेश्चन है तो फ्री के 5 मार्क्स होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग इज अ लिटिल ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी क्यों होता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन फिट करके देखने पड़ते हैं, राइट। तो समटाइम्स यू मे टेक लाइक 1.5 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन, 2 या 3 ऑप्शन आपको डाल के देखने पड़ते हैं। सो दिस माइट बी लिटिल ट्रिकी, ठीक है, बट नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं होता दिस, ये वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कोडिंग का। और अगेन अब लिटिल की अपने जो फर्स्ट ऑप्शन ही यूज किया, शायद वो लग गया, तो यू मे इट मे नॉट टेक टाइम। ब्लड रिलेशन है, इजी होता है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मदर के ब्रदर को क्या बोलते हैं, सिस्टर को क्या बोलते हैं, एंड इंग्लिश में तो बहुत आसान है, ठीक, सबको अंकल आंटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस कि किसका किसके साथ रिलेशन क्या है, एंड सबको पता है। एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अपने आप को सेंटर पे रखिए, ठीक है, एंड फिर अपने बुआ को याद कीजिए, राइट, उनके ब्रदर को, वट एवर। आप मत सोचिए XYZ के बारे में, राइट। इफ दे आर आस्किंग अबाउट योर पैटर्नल आंट, ठीक है, तो एकदम से आपके माइंड में आपकी बुआ आ जानी चाहिए, बुआ का फेस आ जाना चाहिए, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। सेकेंड इज, इसमें जेंडर का बहुत इश्यू होता है। ठीक है, समटाइम्स दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक समवन इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई भी है तो यू, मतलब जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि वी टेक इट एज अ मेल। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं दिया है तो वो मेल या फीमेल नहीं है, until unless it is given। ठीक है, दे यूज द वर्ड स्पाउस, ठीक है, और हमें लगता है स्पाउस का मतलब इज वाइफ, नो नॉट नीडेड, क्योंकि वो हमारा जनरल कंडीशनिंग वैसी है। तो अगर ये 2 चीजों का ध्यान रखोगे तो इट विल गेट, ये भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी इजी ही होते हैं। रैंक एंड ऑर्डर है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट का जो इसका क्वेश्चन होता है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट है यूपीएससी का, दैट इज फेयरली इजी।
बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बैंकिंग वगैरह में इसका बहुत डिफिकल्ट आता है, तो वी नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। कैलेंडर्स वाला जो क्वेश्चन है और क्लॉक्स का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को स्पेसिफिकली थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, एपी जीपी वगैरह है, या फिर जनरल कोई भी सीरीज है विदाउट एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं सीरीज वाले में, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यू मे लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ जरूर करके जाना, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कभी कभी तो आपको वो क्लिक कर जाता है कि रिलेशन क्या है बिटवीन टू नंबर्स, कभी कभी क्लिक नहीं करता तो टाइम बहुत लगेगा, एंड टाइम इज ऑफ एसेंस। तो अगर बहुत टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, राइट। क्यूब्स एंड डाइस का जो इसका क्वेश्चन आता है, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते इसलिए प्रॉब्लम होती है। साइलोजिज्म अ लिटिल ट्रिकी, अ लिटिल डिफिकल्ट, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है। तो इसमें से अगर आप बात करेंगे तो जो थोड़ा इजी टारगेट है, जैसे मैंने मैथ्स के भी इजी टारगेट्स बताए थे आपको, सो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंक ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, और ये थोड़े इजी टारगेट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन इजी होता बट टाइम कंज्यूमिंग है। सीक्वेंस एंड सीरीज में द क्वेश्चन माइट बी इजी और डिफिकल्ट डिपेंडिंग अपॉन इफ इट क्लिक्स यू, ठीक है। और जितना थोड़ा बेटर प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो लुक इनटू दैट एस्पेक्ट। साइलोजिज्म यू में, मतलब कि अगर आपको साइलोजिज्म में इन जनरल ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो यू में लीव दिस टॉपिक। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कंफर्टेबल है तो आई वोंट सजेस्ट यू टू लीव इट, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाइए, कभी कभी साइलोजिज्म के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन अब तक? ओके, नो क्वेश्चंस, फाइन। इसमें बेसिकली क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, या प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं, दैट इज कि अंडरस्टैंड नहीं करते हम क्वेश्चन को, ठीक है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हम ज़्यादा सोच समझने की कोशिश नहीं करते, क्वेश्चन देखते हैं और हम जंप कर जाते हैं, ठीक है। एंड जब भी हम लाइक विजुअल उसकी बात करते हैं, कोई रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको ब्लड रिलेशन की भी बात बताई या फिर डायरेक्शन की भी बात बताई, तो यू कैन विजुअलाइज, है ना, अपने घर की एक उसको मान लीजिए, घर के आसपास की किसी रोड को आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि या दिस इज माय हाउस, तो यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ एंड इफ आई एम मूविंग राइट और लेफ्ट, ठीक है, स्टार्ट मूविंग इन योर ब्रेन, सो दैट विल हेल्प। रीजनिंग का जो पार्ट है वो विजुअलाइजेशन से काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं क्वेश्चन, राइट। दो पार्ट्स हमारे हो गए हैं, मतलब दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अभी तक? ओके, नाउ द कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन यू नेवर नो कि कैसे आ जाएगी, ठीक है। 2023 में कॉम्प्रिहेंशन थोड़े इजी थे, इस साल थोड़े से पोइटिक टाइप थे 2024 वाले में, तो वी कैन से सम ऑफ द कॉम्प्रिहेंशंस वर ऑफ कैट लेवल, ठीक है, एंड मोस्टली अनएक्सपेक्टेड। देखिए, आई वुड सजेस्ट नवनीत की प्रैक्टिस क्वांट फर्स्ट, ठीक है। क्वांट का प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर तो आपको इन जनरल आप सी सेट में कंफर्टेबल हैं तो अभी मत स्टार्ट कीजिए, है ना, एंड टेक सम टाइम फॉर आंसर राइटिंग और ऑप्शनल। बट आपको सी सेट में अगर इश्यू ज़्यादा लग रहे हैं एंड इफ यू आर स्टार्टिंग अभी से, तो स्टार्ट विद क्वांट, ठीक है। और जो कॉम्प्रिहेंशन है, इनको थोड़ा थोड़ा लाइक एक दो कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, लाइक 15 मिनट्स इफ यू आर गिविंग फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। थोड़ा कंफर्टेबल है तो अभी मत स्टार्ट कीजिए अभी सी सेट, ठीक है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप के आते हैं, मैंने ये मतलब कि बेसिकली इसलिए इन को कैटेगराइज किया, ये कोई कैटेगरी ऑफिशियल कैटेगरी टाइप नहीं है, ठीक है, बट माय थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इनको कैटेगराइज किया है। इनको कैटेगराइज करने के पीछे रीजन क्या है, अगर आप इस किसी कैटेगरी में रख लेते हो
जो भी कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आर इजियर फॉर यू, एंड पेपर में जाके आप देख लोगे अच्छा इस टाइप ये वाला कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा ये मेरा ज़्यादा ठीक होता रहा है, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आई विल कम डू। और जैसे इन्फ्रेंशियल वाले हैं राइट, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्लियर अच्छे नहीं होते। सॉरी सिस्टम, हेलो जी बेटा, वो सेशन में हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, एम आई ऑडिबल? तो अगर आपको ये आइडिया होगा कि आपका जो पैसेज है वो फैक्चुअल है और आपका फैक्चुअल वाले ठीक हो रहे हैं, एनालिटिकल है आपके एनालिटिकल वाले बाय योर एक्सपीरियंस यू नो कि ये ठीक हो रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा पैसेज चूज करना। क्योंकि 30 के अराउंड अगर पैसेज के क्वेश्चन आते हैं तो 8 to 10 पैसेज आर वेरी डिफिकल्ट ना। और उनमें अगर आप घुस जाते हो तो एक चीज़ बताता हूँ जो पता नहीं आप लोगों ने कभी फेस की है या नहीं की है। देर इज अ थिंग कॉल्ड ईगो, और सी सेट के पेपर में इसको साइड में रख के जाना, ठीक है, पूरी तरह। ईगो मतलब इन एवरी सेंस, अंडर कॉन्फिडेंस वाली भी जो हमने ऊपर बात की थी कि यार इतना आसान क्वेश्चन है, मेरे इतना आसान थोड़ी क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, या फिर मेरे को थोड़ी आता होगा ये क्वेश्चन, राइट। एट द सेम टाइम देर इज समथिंग कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मे बी इन कॉम्प्रिहेंशन, मे बी इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और मे बी सॉरी लॉजिकल रीजनिंग, और फिर क्यों क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड में, सॉरी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया एंड यू गेट दिस कि अब ये नहीं हो रहा है, राइट, तो छोड़ दो उसको। वो मत लो कि यार मैंने 2 मिनट इस पे लगा दिए हैं, अब मैं और नहीं करूंगा या करूंगी तो आई वोंट गिव अप। उसके चक्कर में आप, आई थिंक आप लोगों ने सबने ये चीज़ तो ज़रूर फेस की होगी कि वहाँ पे फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, और 1 2 3 मिनट और एक्स्ट्रा खराब हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत क्लियरली आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ईगो नहीं काम आएगी, यूपीएससी का पेपर है, नहीं हो रहा, लीव इट, ठीक है। तो होगा कुछ क्वेश्चंस में होगा, दैट इज व्हाई आई से कि 10 मिनट तो आपके पेपर में खराब हो गए ही होंगे इन दीज क्वेश्चंस, जो आप शुरू कर दोगे और नहीं आप एंड तक पहुंच पाओगे। 10 से 15 मिनट, और उतना आप अफोर्ड करते हो। लेकिन अगर वो 25 मिनट तक पहुंच गया, वो वाला पार्ट जहाँ पे आपने 2 3 4 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे शुरू कर दिए जो आपसे सॉल्व भी नहीं हो रहे, आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो उनको, ठीक है। या 5 मिनट लगा के अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया, 2.5 मार्क्स ले भी लिए, तो दैट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 या 1.5 मिनट के बाद क्वेश्चन में यू गेट टू नो कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है, तो वहां पे उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस इट फ्रॉम हेयर ओनली, यहीं से उसको छोड़ने की प्रैक्टिस करके जाइए, अलग से नहीं, ठीक है। एक तो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं, तो स्पेसिफिक डिटेल्स एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, दीज आर द इजीएस्ट वन, ठीक है। कुछ फैक्ट दिया ऊपर, उस फैक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पूछी है जो आपके इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो या नहीं। इन पैसेज, ये पैसेज इजी होते हैं, बट इन पैसेज के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि पैसेज की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो लंबे पैसेज होंगे, लाइक वोकैब इजी होगी, वर्ड भी इजी होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम इतना लंबा पैसेज देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अगर बहुत लंबा पैसेज है, उसके एंड में एक क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, राइट। यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा फैक्ट पूछा है, ठीक है, फैक्ट पूछा है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गिव दैट आंसर, ठीक है। तो मोस्टली बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ने चाहिए, बट आई से कि पहले आप जो भी पैसेज आपने करना है या नहीं करना है, उसको पैसेज को एक नज़र मारो उस पर, जस्ट लाइक ग्लांस, लाइक 20 सेकेंड, है ना। देन यू गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लाइक पॉजिटिव साइड वाला है या आपके नेगेटिव साइड वाला है, नहीं। देन एक बार के लिए अगर आपको लगता है नहीं, ये नहीं होने वाले में से है या इनमें थोड़ा इश्यूज है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो एक बार के लिए उसको होल्ड पे रख दीजिए एंड देन यू कैन रिविजिट इट एट द एंड, राइट। सेकेंड टाइप इज द एनालिटिकल टाइप, ठीक है। तो लॉजिक के ऊपर है, यहाँ से क्या है कि आपसे लॉजिक पूछेंगे कि क्या लॉजिक है। सो दिस इज अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट
फैक्चुअल पैसेज से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है, इन्फ्रेंस वाला इसलिए डिफिकल्ट होता है, इट आस्क यू टू रीड बिटवीन द लाइंस। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, राइट, दो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं व्हेन यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो ये डिपेंड करेगा अब कि जो ऑथर है उस पैसेज का, ठीक है, वो क्या इन्फर करना चाहता है या व्हाट इज हिज इंटरप्रिटेशन। आपकी इंटरप्रिटेशन उसमें काम नहीं आएगी। तो दीज आर द पैसेजेस जिस पे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है और नेगेटिव होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। एट द सेम टाइम इस पैसेज की एक खास बात होती है, दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको दो ही ऑप्शन में रिस्क लेना होता है, ठीक है। आप 2023, 2022, 2024 के अगर आंसर कीज देखेंगे इंस्टीट्यूट्स की, तो एटलीस्ट 3 या 4 पैसेज में उन्होंने दो दो आंसर्स दिए होते हैं, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने सारे टीचर्स हैं, राइट, सब मिलके भी एक एक कॉम्प्रिहेंशन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, है ना। अब ऑथर ने जब लिखा है उसने क्या सोच के लिखा, उसके बेस पे वो क्वेश्चन है और उसी का माना जाएगा, वट एवर यूपीएससी गिव्स। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, बट रिस्क होता है यहाँ पे 50-50 का ही मोस्टली, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपरली आता है। तो ये रिस्क आपको सोच के लेना है। क्या सोचना है, अगर तो आप ऑलरेडी 45 के अराउंड क्वेश्चन पूरे कर चुके हो एंड यू आर कंफर्टेबल कि हाँ, यू आर थिंकिंग कि हाँ हो जाएगा, तो ये रिस्क नहीं लेना है। बट आप 40-42 के आसपास हो और ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके अटक रहे हैं, तो टेक दिस रिस्क। और ऐसा भी नहीं कि 40 किए और तो करना ही है। कभी कभी क्या होता है, आपने 40 किए और यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे 32-33 तो पक्के ठीक है, देन ऑल्सो डोंट टेक दिस रिस्क, ठीक है। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप 60 के अराउंड हो या 65-70 के बीच में कहीं झूल रहे हो, तो यू नीड टू टेक दैट रिस्क, ठीक है। समटाइम्स दे आर नरेटिंग अ स्टोरी, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इजियर साइड पे होता है इफ नरेशन बेस्ड कोई पैसेज है, क्योंकि वो किसी एक स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं, देन स्टोरीज आर इजी टू इंटरप्रेट, ठीक है। देन एक्सपोजिटरी पैसेजेस, जहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेन वो करेंगे, इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, कंसेप्ट बेस्ड होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक चीज जो गलती होती है स्टूडेंट से, वो क्या होती है कि वट एवर द कंसेप्ट इज गिवन इन द पैसेज, ठीक है, इवन दो इट इज रॉन्ग इन जनरल लाइफ, ठीक है, आपको उसको ट्रू मानना है। अगर पैसेज ये बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने से इंटरेस्ट रेट को, मतलब कि अगर इंक्रीज कर रही है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, अगर पैसेज ये कह रहा है तो आपको उसको सच मानना है, ठीक है। इट इज नॉट करेक्ट इन जनरल, राइट। बट अगर ये चीज बोल रहा है पैसेज तो आपको उसको सच मानना है। एंड ये थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला तो वेग एग्जांपल, कभी कभी ऐसा चीज होती है जो कि हम थोड़ा सा आइडिया नहीं होता हमें और हमें लगता नहीं, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हम उसको जीएस के फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। देन फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट पैसेज, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिलोसफिकल डिस्कशंस है, थोड़ा पोइटिक्स से पैसेज है जो इस बार 2024 में थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती है ना। तो सेम जो इन्फ्रेंस बेस्ड है और फिलोसफिकल है, इन दोनों में इशू रहता है। देन कम्स द सोशल एंड इकोनॉमिक इशू बेस्ड, ठीक है, ये इन जनरल दे आर इजी ऑन द इजियर साइड, क्योंकि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पैसेज में मोस्टली जो दिया होता है वो फैक्ट होता है एंड यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो ये ऑन द इजियर साइड होता है। बट यहाँ पे एक इशू क्या होता है कि आपको वो सेंटेंस जो है, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस है, वो पैसेज में दिया ही नहीं है, बट यू नो इट टू बी ट्रू, तो आप उसको आंसर नहीं मान सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, लेकिन आपको तो कॉम्प्रिहेंशन का आंसर देना है ना, ठीक है। तो अगर 4 स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट दे रखी है सन राइजेज इन द ईस्ट और उस वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आपके पैसेज में, तो यू कैन नॉट टेक इट एज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक वाले में ये दिक्कत आती है, क्योंकि बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स
आप लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेजेस। अभी से आप थोड़ा सा आदत डाल दीजिए कि अब मैं ये वाली अगर आप लोगों को चाहिए तो ये 2 स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी से आप आदत डाल लीजिए कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो कि आपका ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है या ये वाला है, इनमें से किस एस्पेक्ट में फिट बैठ रहा है, किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। एंड देन विद प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि इस टाइप के पैसेज जो है मेरे ज़्यादा ठीक होते हैं, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा ठीक होती है, तो इट विल बी अ लिटिल ईजियर। नाउ चैलेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। डेंस टेक्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी होती है, राइट। कभी कभी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है वोकेबलरी, सॉरी, ठीक है, कि हम वही नहीं कर पाते उसको, मतलब समझने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल पार्ट इन सी सेट में इन जनरल भी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि कभी कभी तो एक एक पेज का एक कॉम्प्रिहेंशन है, उसके एंड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। और ये पैसेज भी कभी कभी ईजी नहीं होता। तो आपको ये चीज़ फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, और अभी से उस चीज़ की आदत डाल लो फिल्टर आउट करने की। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये जो हमने ऊपर बात की थी, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं, पैसेज के अंदर तो है नहीं उसका इन्फ्रेंस, आपको निकालना है, और 2 बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। तो दिस इज अ लिटिल रिस्क, एंड एज आई एक्सप्लेन कि रिस्क लेना है या नहीं लेना। देन थीम्स बहुत वैरायटी की होती है, फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, ठीक है। और थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो इजी है। अब साइंस बेस्ड जो पैसेज होते हैं उसमें क्या होता है, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हालांकि है वो कॉम्प्रिहेंशन ही, दे आर नॉट आस्किंग यू एनी साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है वो कॉम्प्रिहेंशन ही, एंड विद इन फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स ओनली आपको करना होता है। बट अब उस चीज में थोड़ा फियर को गिव अप करना होगा। अब फिलोसफी वाले हैं दैट दीज आर अगेन, जैसे इन्फ्रेंस पेज थे, दीज आर ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे अगेन द रिस्क शुड बी टेकन, अब डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट वहाँ पे कितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आपको लग रहा है नहीं फिलोसफी बेस्ड में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड एवरीथिंग, तो एक ऊपर से कर्सरी रीडिंग करके आप फिलोसफी वाले क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या पैसेज ईजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कभी कभी क्या क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा हुआ है, पैसेज में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछा हुआ है तो पैसेज में से ढूंढ के आप लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, राइट। देन आंसरिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ एलिमिनेट करके और टाइम प्रेशर के अंडर गलती भी करेंगे, तो दिस कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसीलिए डेली एक पैसेज अगर आप कर लेते हो, राइट, अभी हमारे पास 120 डेज हैं, डेली अगर एक पैसेज भी करते हो, राइट, एक या 2 पैसेज भी, है ना, तो बहुत हो जाएंगे। इफ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 120 पैसेज बाय द दिस टाइम, तो इतना सफिशिएंट है, राइट। देन कैसे आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। यस, उसका Sir, sometimes you feel now like you both the answers of the candidates is like correct, and you even discuss with other, candidates how to feel. But at the end, it would be like, answer that would be right, only देखिए, that would be on the basis of the pleasure of the checker only. So what should we do on such case? And when you are in such a situation that you know that only three questions are correct, and you want to tell them on this journey. in that case you need to attempt, ठीक है। in that case you need to attempt, and you need to attempt, go with your instinct, ठीक है, क्योंकि इंस्टिंक्ट से जाना ही पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट द इवेलुएटर एक्चुअली, ठीक है। इसमें होता है द पर्सन हु हैज रिटन द पैसेज, ठीक है, ऑथर ऑफ द पैसेज, उनकी इंटरप्रिटेशन इज देयर, है ना। whenever someone is explaining something, तो उनका, क्योंकि एक पैसेज इज, इट कम्स फ्रॉम अ ब्रॉडर राइटअप, है ना, और हमें वो ब्रॉडर राइटअप तो हमें नहीं पता होता, राइट। तो अभी क्या होता है, जैसे 6 पैसेज का किसी ने राइटअप दिया,
राइट, उसमें से 3 पैसेज उठा के आपको यूपीएससी वालों ने दे दिए और उसका आपसे इन्फ्रेंस पूछ लिया, जो कि उन 3 पैसेज से बहुत क्लियर नहीं है ना, और उसमें से 2 ऑप्शन क्लोज आती है, लेकिन अब उस राइटर ने पूरा 6 का जो लिखा है उसका जो आंसर है वो यूपीएससी उठा के उसमें डाल देगा, ठीक है। तो इट इज वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एक्चुअली, और ऐसे हर साल 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, ठीक, क्योंकि आपने वो पैसेज पूरा कहीं नहीं पढ़ा होता, ठीक, तो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके भाई बहुत ही मार्जिन पे यू हैव देयर, तो यू नीड टू टेक दैट रिस्क अगेन। अगर लक फैक्टर की बात करें तो 3 अगर आप अटेम्प्ट करोगे 50-50 वाले, तो एक भी अगर ठीक हो गया, राइट, तो यू विल गेन 0.83 मार्क्स, राइट, दैट इज गुड इनफ, राइट। और अगर इतना ही लक खराब है कि 3 अटेम्प्ट किए और तीनों ही गलत हो गए, तो देन मे बी कि सीसेट में थोड़ा प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लक इज 0 लक में उसको मानता हूँ 1 आउट ऑफ 3 ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3 जिसके ठीक हो गए वो थोड़ा पॉजिटिव लक में चला जाएगा, बट जनरली 1 आउट ऑफ 3 तो ठीक हो ही जाते हैं ऐसे केस में, दैट इज ऑल्सो गिव यू सम पॉजिटिव मार्क्स एंड दीज मार्क्स आर मच नीडेड। तो इन जनरल भी जीएस में भी आई एक्सप्लेन दिस कि अगर आप 50% आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 पॉइंट एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 ऑप्शंस, तो यू शुड अटेम्प्ट दैट, यू नीड टू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट, राइट। कैसे करने हैं, एक तो डेली थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर अगेन जिनको सी सेट में प्रॉब्लम है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आपका सी सेट ठीक है तो आप अभी से सी सेट मत स्टार्ट करना, जीएस विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। प्रीवियस ईयर डेफिनेटली सॉल्व करने हैं, थोड़े थोड़े फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अभी 40 इसके कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, आई हैव अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। यू कैन टेक दोज एज वेल, एक बार में नहीं भी करना तो एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बट डू दैट। डाइवर्स रीडिंग हेल्प्स, रीड न्यूज़पेपर जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े होंगे माइट भी, ठीक है। and when you are reading newspaper, so don't only stick to this economic and political news, ठीक है। so कभी कभी साइंस के जो पैसेज आते हैं एंड में जिनका, तो उस पर थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। देन द ओपिनियन पेज है, या फिर कभी कभी सर्वे वाले पेजेस होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो यू कैन रीड दोज पॉइंट्स, ठीक है। देन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि रेगुलर बेसिस पे यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है, इन्फ्रेंस के लिए। ड्यूरिंग पेपर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करते हुए कैसे कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। फर्स्ट इज स्किमिंग, एक बार पैसेज को जस्ट गिव 20 सेकेंड 30 सेकेंड टू द पैसेज एंड अंडरस्टैंड कि किस थीम के ऊपर बेस्ड है, राइट। देन पर्सनली माय थॉट इज देन रीड द क्वेश्चन, वंस यू हैव skimmed the passage and read the question, then scan for the keywords from the question, ठीक है। क्वेश्चन के कीवर्ड्स जहाँ पे भी है, ये इन्फ्रेंस वाले में काम नहीं आता है ये वाली टेक्निक, बाकी जगहों पे काम आती है, कि जो क्वेश्चन का कीवर्ड है, क्वेश्चन की डिमांड के जो कीवर्ड है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। देन एक्टिव रीडिंग, उसको थोड़ा फास्ट रीड कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस की क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, सम स्टूडेंट्स माइट फेस दिस प्रॉब्लम इन इंग्लिश या फिर पैसेज में जो डिफिकल्ट है, कि पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे, राइट, एंड दिस मे नॉट बी वेरी गुड आइडिया स्पेसिफिकली फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस दिस। न्यूज़पेपर रीडिंग इसीलिए मैं पुश भी करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, अब तो आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, बट अब तक आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो एक्टिव रीडिंग आपकी थोड़ी तो इम्प्रूव होगी, कि while reading the newspaper only या reading the topic only, reading the sentence only, आपको समझ में आ जाए कि इसका क्रक्स क्या है। then practice, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, you need to have the purpose कि स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव करना है, एंड एनालाइज कीजिए परफॉर्मेंस को, राइट। यस, नाउ टाइम मैनेजमेंट और कैसे करेंगे, एक तो वही प्रायोरिटाइज द पैसेजेस, जैसे मैंने आपको बताया अगर 6-7 कैटेगरी के पैसेजेस आ रहे हैं
तो उसमें से लुक इनटू इट कि आपको कौन से पैसेज में थोड़ा सा ईज है, एलोकेट टाइम वाइजली, ठीक है। अगर किसी पैसेज में और इन सब चीज़ों में अगर 1.5 से 2 मिनट लग रहे हैं तो इफ एनी क्वेश्चन इन सी सेट, ठीक है, 1 मिनट लगने के बाद आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, तो ट्राई टू लीव इट देयर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट से ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। यू कैन कीप द लाइक जो स्टॉप वॉच टाइप की चीज़ें हैं, अभी काफ़ी जगहों पे यूपीएससी अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, बट जनरली यूपीएससी पहले अलाउ करता था। तो डोंट गेट डिपेंडेंट अपॉन इट, बट हैव एन आइडिया कि अब इसको इतना टाइम हो गया, अब इसको हम और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। एलिमिनेशन इज अ गुड टेक्निक, ठीक है। आपको पता है दो इवन कॉम्प्रिहेंशन में भी एक या दो चीज़ तो एलिमिनेट करना गेट्स फेयरली इजी। तो पहले जैसे ही हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, डोंट गेट स्टक। कभी कभी क्वेश्चन है पैसेज खुद ही बहुत डिफिकल्ट है, कभी कभी लग रहा है पैसेज डिफिकल्ट, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, 1-1.5 मिनट लगाया, आपको पता चला 4 पैराग्राफ का एक पैसेज है, उसमें से 1-1.5 मिनट के बाद आपने एक ही पैसेज पढ़ा है, अभी तो एक ही पैराग्राफ पढ़ा, 3 पैराग्राफ पढ़े हैं इसके, छोड़ दीजिए। यू डोंट हैव टाइम लाइक 7-8 मिनट्स टू रीड वन पैराग्राफ, वन पैसेज, ठीक है। तो वहाँ पे स्टक नहीं होना है। एंड प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस, ठीक है, लाइक टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। एनालाइजिंग मॉक टेस्ट है, इसको मैं इंडिविजुअली आप लोगों का एनालाइज करूंगा मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब नहीं है, बट हाँ रीडिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा होल सी सेट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो स्पेसिफिकली, ठीक है। देन दिस इज वन स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ, ठीक है। कीप सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो एक सी सेट का टेस्ट अगर अभी से पर वीक सॉल्व करेंगे तो यू हैव एम्पल नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ, आई गेस 17 वीक्स है अभी, यस 17 वीक्स फ्रॉम टुडे फॉर द पेपर। हाँ, तो हो जाएगा आराम से, वन टेस्ट अभी करोगे तो 10-12 सी सेट के टेस्ट भी कर लोगे तो ईजी है। नॉलेज से नहीं काम चलेगा, सॉल्विंग होनी चाहिए, एबिलिटी टू सॉल्व होना चाहिए, और एबिलिटी टू सॉल्व इन अ फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। सी सेट की अगर क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ कि 2 घंटे में 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप 20 क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर देगा उसमें से, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट प्रॉब्लम है, यू नीड टू लाइक बैलेंस एक्यूरेसी ऑल्सो, स्पीड ऑल्सो। स्पीड के चक्कर में बहुत क्वेश्चन गलत मत करना। कभी कभी क्या होता है, एंड के आसपास पहुंचने वाले होते हैं, आप देखते हो अच्छा ऑप्शन में ये है और आप उसको मार्क कर देते हो, डोंट डू दैट, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर। अगर आप एंड के आसपास पहुंच ही गए हो तो 10 सेकंड और लगा के उसको कंप्लीट कर लो, सो दैट यू विल बी वेरी श्योर कि आपका ये क्वेश्चन सही है। वाइल प्रैक्टिसिंग थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह अगर हैं, एसेंशियल हैं, तो उनको याद कर लो, रिव्यू कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। एक ओनली आई एस पी डब्ल्यू का एक 14-15 पेज का एक फॉर्मूले का शीट है, राइट। इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप वो वाला, आपको अगर बेसिक आइडिया है तो क्विक रिवीजन के लिए इट इज़ गुड फॉर दोज हु आर हैविंग बेसिक आइडिया। और अगर बेसिक आइडिया नहीं है तो वो वाला मत यूज़ करना। एक बार जब बेसिक आइडिया हो जाएगा तो उसको याद करने के लिए, है ना, इट इज़ अ गुड थिंग। देन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, सी सेट की बुक्स हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से कुछ कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि सी सेट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, तो ही हैज़ इम्प्रूव्ड, है ना। कि वो क्या करते हैं कि 1-1.5 घंटे का एक वीडियो होता है किसी टॉपिक के ऊपर, वॉचेज इट एंड 2 दिन उसको प्रैक्टिस करते हैं, ऑल्दो इट टेक्स मोर टाइम, है ना, बट अगर इशू ज़्यादा है तो इट कैन बी डन। अगर हम बात करें टोटल, तो क्वांट के और लॉजिकल रीजनिंग के मिला के 30 के आसपास टॉपिक्स हैं, राइट। तो अगर आप एक टॉपिक पे 3 दिन भी देते हैं ना, जो 30 टॉपिक्स हमने करने हैं, टॉपिक्स तो थोड़े ज़्यादा हैं, 10-12 टॉपिक आप एलिमिनेट कर दीजिए, और अराउंड 30 टॉपिक्स अगर आप करते हैं सॉल्व, और 1-1.5 आवर डेली देते हो, तो 3 डेज में आराम से एक दिन आप उसकी क्लास कर लीजिए, नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए अगर यूट्यूब वीडियो चाहिए। और आई ऑल्सो गिव यू द यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का टॉपिक का आपको चाहिए होता है, आई शेयर दैट एज वेल।
1-1.5 घंटे का वीडियो का फर्स्ट डे सेकंड डे प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड डे इफ यू हैव एनी इश्यूज तो उसको रिवाइज कर लीजिए। तो मोस्टली क्या है कि 30 टॉपिक्स में 5-7 टॉपिक्स 8 टॉपिक्स तो आपको वैसे ही आते होंगे, 20-22 टॉपिक्स में इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स टू कवर, एंड बाकी टाइम में रिवाइज कर सकते हैं आप आराम से। या दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको एसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा वीक है उसको मत छेड़िए, जहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि स्कोप है, ठीक है, कि बहुत वीक भी नहीं है लेकिन ऐसा है कि यहाँ अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा या करूँगी तो क्वेश्चन जो है वो बेटर इम्प्लीमेंट हो सकता है, अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर फुल लेंथ पेपर सॉल्व कीजिए। अगर तो देखो आप 100 से ऊपर सॉल्व कर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बट आई वुड इवन से कि 80 से ऊपर भी 2021, 22, 23, 24 वाले पेपर में आप कर रहे हो स्कोर, ऑल ऑफ देम, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, थोड़ी सी प्रिपरेशन से आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 80 मार्क्स से भी कम आ रहे हो तो थोड़े कम आ रहे हैं, लाइक इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 60 to 80, ठीक है, तो थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, बट बहुत ज्यादा बल्कि इवन 55 to 80, तो स्टिल यू नीड टू वर्क, बट बहुत ज्यादा नहीं। बट इफ यू आर गेटिंग बिलो 50, ठीक है, इन दोज पेपर्स, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क अ लिटिल मोर। अगर वो वाले पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या किए हैं और सब में एवरेज स्कोर इफ इट इज बिलो 50, ठीक है, तो स्टार्ट अर्ली। और अगर बिलो 30 है तो अभी से कम 2 घंटे सी सेट पे देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द स्पॉट्स वेयर यू नीड टू वर्क, ठीक है। बाकी हाँ, सी सेट को भी सीरियसली ले लीजिए, सीरियसली लेने का मतलब डरना नहीं है, ठीक है, बट एवरी ईयर एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 2-3 thousand स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उनका सी सेट क्लियर नहीं होता। सी सेट तो बहुत बच्चों का क्लियर नहीं होता, आई गेस 2023 में माइट बी लाइक लाख बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे। आई डोंट नो इफ द फैक्ट फिगर आई एम टेलिंग इज ऑफिशियल और नॉट, बट एटलीस्ट जो मतलब रूमर है काइंड ऑफ कि कम से कम 2.5-3 लाख बच्चों का सी सेट फेल हुआ था उस साल 2023 में। माइट बी ट्रू माइट बी नॉट, आई डोंट नो, बट हाँ, सी सेट का उन बच्चों को तो छोड़ दो क्योंकि जिनका जीएस क्लियर नहीं हो रहा उनका सी सेट नहीं हुआ, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट 2023 और 4 में एवरी ईयर 2,000-3,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका जीएस क्लियर हो रहा है और सी सेट क्लियर नहीं हो रहा हुआ। तो दैट इज वन थिंग कि थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है, बट सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है कि डरना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट सी सेट। इंडिविजुअली प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आई विल शेयर आप लोगों को जिसको चाहिए होंगे, एंड आई विल आल्सो एनालाइज आप लोगों को कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है इफ यू वांट। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई भी पूछना हो तो ऑलवेज यू कैन फील फ्री, है ना, टू आस्क, कॉल, मैसेज, व्हाटएवर, सब, है ना। ओके, आई होप इट विल हेल्प यू इन यू नो सॉल्विंग अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं एंड एनीथिंग। इंडिविजुअली ऑल्सो यू कैन यू नो आस्क एनी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है, बट हाँ, सी सेट को थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों ने अभी तक ज़्यादा नहीं किया है और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो 2022-2023 का पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एंड देन वी कैन डिस्कस कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट सेशन आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग फॉर इकोनॉमी एंड पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा और समथिंग लाइक दैट, बट आई विल डिस्कस कि सिलेबस को थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमी के किन किन एस्पेक्ट से पूछे गए हैं, किन किन चैप्टर से आ रहे हैं, पॉलिटी के किन किन चैप्टर से आ रहे हैं। तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास कोई एज सच कोई सेशन नहीं है, राइट, और क्योंकि अभी इकोनॉमी और पॉलिटी का रिविजन चल रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स का अगर नहीं भी चल रहा होगा तो आगे तो करना ही है, तो दैट माइट हेल्प कि कौन कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके बाद
3rd और 4th को शायद इकोनॉमी एंड पॉलिटी के टेस्ट है आपके, जिनका सेशन 9th को होगा। 3rd और 4th को जो पॉलिटी और इकोनॉमी का टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, मेरे को भेजनी है। तो उन चारों टेस्ट को मैं 9th को डिस्कस करूँगा, एंड क्योंकि चारों टेस्ट को डिस्कस करूँगा तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आई विल पिक अप लाइक 20-25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टेस्ट, जिसमें कि आई विल सी कि कुछ आसान क्वेश्चन पिक कर लूँगा कि गलत नहीं होने चाहिए थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पिक कर लूँगा एंड एवरीथिंग। तो 80 क्वेश्चंस आई डिस्कस। तो वो सेशन 9th को जो होगा माइट भी 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का हो जाएगा वो सेशन, ठीक है। तो देखिए, इफ़ यू पीपल आर रेडी, ठीक है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना, टू प्रिपेयर द सेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है इन सेशन से, तो आई डेफिनेटली हैव दोज 2 सेशंस। ये 2 सेशंस तो मैं लूँगा ही, 2nd एंड 9th को तो। एंड देन इफ इट मतलब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक अटेंडेंस है, मतलब एटलीस्ट 8-10 बच्चे तो आए ना, तो देन आई विल कंटिन्यू विद दोज सेशंस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एनीथिंग एनी टाइम यू कैन आस्क। अभी भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।